سیکیورٹی فورسز کا اورکزئی میں فتنہ الخوارج کو بھرپور جواب۔ افسران اور جوانوں کو شہید کرنے میں ملوث تمام 30 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی پراکسیز فتنہ الخوارج کا یہ گروہ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور نوجوانوں کی شہادت میں ملوث تھا۔ اس گروہ میں شامل 30 خارجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز ملک بھر سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بس بہت ہو گیا، آگ اور پانی کا کھیل مزید نہیں چل سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اب وقت آ گیا ہے دہشت گردی سے متعلق ٹھوس فیصلے کیے جائیں۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں انہوں نے کہا سپہ سالار پرعزم ہیں، پوری قوم یکسو ہے، خوارج کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ شہداء نے اپنے خون سے لکیر کھینچ دی ہے، پاکستان بچانے کے لیے لڑنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا دہشت گردی کا سر نہ کچلا گیا تو سب کی محنت رائے گاہ چلی جائے گی۔ Enough is enough. آگ اور پانی کا کھیل۔ بانی پی ٹی آئی نے ہزاروں طالبان کو پاکستان لا کر بسایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، کہا کہ آج بھی پی ٹی آئی دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ سالوں سے ہماری فوج اور عوام کا خون بہایا جا رہا ہے۔ افغان حکومت کے ساتھ سالوں پر محیط مذاکرات ہوئے، وفود کے کابل آنے جانے کے باوجود پاکستان میں خون ریزی بند نہیں ہوئی۔ روزانہ فوجی جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ 60 لاکھ افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی قیمت ہم اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے افغان مہمان اپنے گھروں کو جائیں۔ دہشت گردی اور خون ریزی بند ہونی چاہیے۔ یہ کیسے مہمان ہیں جو میزبانوں کا خون بہاتے ہیں اور قاتلوں کو پناہ دیتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا ہے۔ ہم سب اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی افواج کے مقروض ہیں۔ وطن کی حفاظت کر کے افواج پاکستان نے ہم سب پر احسان کیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا یہاں لوگ دہشت گردوں کی مذمت کرنے سے کتراتے ہیں، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ واضح ہونا چاہیے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہیں۔ دہشت گردوں کے لیے کوئی رعایت برداشت نہیں۔ افغانستان کو بھی یہ پیغام دے دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں پریس کانفرنس کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دوپہر 2:30 پر ہوگی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکہ سنا گیا۔ ترجمان افغان حکومت ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے ابھی کسی نقصان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ غزہ میں جنگ ختم ہو گئی، تمام یرغمالی رہا ہو گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا گزشتہ شب ہم نے مشرق وسطیٰ میں تاریخی پیش رفت حاصل کی جو بہت سے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ تمام یرغمالیوں کو پیر یا منگل کو رہا کر دیا جائے گا۔ غزہ کی تعمیر نو ہوگی۔ دنیا کے اس حصے میں بعض ملکوں کے پاس بے پناہ دولت ہے، اگر اس کا چھوٹا حصہ غزہ کے لیے استعمال ہو جائے تو وہاں کمال تبدیلی آ سکتی ہے۔ مصر میں امن معاہدے کے دستخط کی تقریب میں شرکت کروں گا۔ Tonight we reached a momentous breakthrough in the Middle East, something that people said was never going to be done. We ended the war in Gaza. I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Secured the release of all of the remaining hostages, and they should be released on Monday or Tuesday. That'll be a day of joy. I'm going to try and make a trip over. I'm going to go to Egypt. We're going to have an official signing. Gaza is going to be slowly redone. You have tremendous wealth by certain countries. You're going to see some tremendous countries stepping up and putting up a lot of money. Iran wants to work on peace now. They've informed us and they've acknowledged that they are totally in favor of this deal. They think it's a great thing. So we appreciate that, and we'll work with Iran. I want to express my tremendous gratitude to the leaders of Qatar, Egypt, and Turkey for helping us reach this incredible day. And Saudi Arabia and Jordan, and President Erdogan was personally involved in dealing with Hamas and some of the others. غزہ میں جنگ بندی کے لیے اہم پیش رفت، اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر معاہدہ طے پا گیا۔ صدر ٹرمپ نے بتایا منصوبے کے پہلے مرحلے پر دستخط ہو گئے، جلد تمام یرغمالی رہا کر دیے جائیں گے۔ اسرائیلی افواج متفقہ لائن تک پیچھے ہٹ جائیں گی۔ قطر اور حماس نے بھی معاہدے کی تصدیق کر دی۔ ترک حکام کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے مطابق مشترکہ فورس تیار کی جائے گی۔ مصر، قطر، امریکہ اور اسرائیل کے باشندے بھی اس فورس میں شامل ہوں گے۔ غزہ میں جنگ بندی 24 گھنٹے میں شروع ہوگی۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے بتایا ہے اسرائیل نے مصر میں امن معاہدے کے حتمی مسودے پر دستخط کر دیے۔ 24 گھنٹے بعد قیدیوں اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کا ٹائم فریم شروع ہوگا۔ The final draft of Phase 1
was signed this morning in Egypt by all parties to release all of the hostages. And the IDF will then redeploy to that yellow line we mentioned, which will lead to the military controlling and holding about 53% of the Gaza Strip. Now, phase one stands very clear. All of our hostages, the living and deceased, will be released 72 hours later, which will bring us to Monday. Now, within 24 hours after the cabinet meeting takes place, a ceasefire will then begin in Gaza. After this 24-hour period, the 72-hour time window will then begin, where all of our hostages will be released back into Israel. इसराइल जंग बंदी माहदे के इक़दामात पर चालाकी कर रहा है। हमास का इल्ज़ाम। हमास तर्जुमान हाज़िम कासिम ने अल जज़ीरा को बताया, इसराइल ने जंग बंदी माहदे में तयशुदा तारीख़ों, फहरिस्तों और बाज़ इक़दामात में गड़बड़ शुरू कर दी है। नेतन्याहू ऐसा इसलिए कर रहा है इसराइली अवाम को दिखा सके कि वो सब कुछ कंट्रोल करता है, फैसले खुद करता है। हम सालिसों के साथ राब्ते में हैं ताकि काबिज़ हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो तयशुदा उमूर की पाबंदी करे, ताख़ीर ना करे। बात हुई थी जंग बंदी का ऐलान आज दोपहर को होगा, लेकिन काबिज़ हुकूमत दाखिली मफाद के बाइस ऐलान को मौखर कर रही है। उम्मीद है सदर ट्रंप की अमन कोशिशें जल्द अमली सूरत इख्तियार करेंगी। रूसी सदर पुतिन का हमास इसराइल जंग बंदी माहदे का खैर मकदम। कहा, सिफारती कोशिशों के साथ गाज़ा में इंसानी अलमी और तबाही का सिलसिला भी जारी है। सदर ट्रंप की अमन कोशिशों की हिमायत करते हैं। मशरिक़ वस्ता के मसाइल सिर्फ सियासी और सिफारती ज़राए से हल हो सकते हैं। रूस हर उस इक़दाम की हिमायत करता है जो खून रेज़ी रोकने और ख़ित्ते में अमन कायम करने के लिए हो। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की जंग बंदी माहदे पर दस्तखत की तकरीब में सदर ट्रंप को शिरकत की दावत। मिस्री मीडिया ने बताया है, तुर्क सदर ने मिस्र में मुनाकिद होने वाली तकरीब में अमरीकी सदर को शिरकत की दावत दी। सदर एर्दोगान ने कहा, तुर्की गज़ा में जंग बंदी के नफाज की निगरानी में शामिल होगा। इस माहदे के नफाज की ज़मीनी निगरानी करने वाली टीम का हिस्सा होंगे। बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर गज़ा की तामीर नौ में भी हिस्सा लेंगे। तुर्की ने इब्तिदा से माहदे में फ़ाल किरदार अदा किया। गज़ा में फ़ौरी इंसानी इमदाद पहुँचाना सबसे अहम काम है। कैदियों का तबादला और इसराइल के हमले फ़ौरी बंद होने चाहिए। फ़ौज वापस मुकर्ररा हुदूद में चली जाए। इसराइली बस्तियों से फ़लस्तीनी रियासत को शदीद ख़तरा है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन कहते हैं, आने वाले चंद घंटे गज़ा में अमन के हवाले से फ़ैसला कुन होंगे। गज़ा माहदे पर तमाम फ़रीक़ैन को अमल दरामद करना चाहिए। जंग रोकना इसराइली अवाम के मफाद में है। अमरीका और दीगर सालिसों को गज़ा माहदे तक पहुँचने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। सऊदी वली अहद के साथ अमन हमारा मुश्तरका मकसद था। हमें कैदी वैन में डालकर बदनामे ज़माना इसराइली जेल में मुंतकिल किया गया। हमारे हाथ बांधे गए, आंखों पर पट्टी डाल दी गई। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के मेंबर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। बताया, ज़हनी अजियत देने के लिए बंदूकें तानी गईं, कुत्ते छोड़े गए। इसराइली एहलकार डिपोर्ट होने के आखिरी वक्त तक टॉर्चर करते रहे। नेगेव डिजर्ट में जो इनका बदनामी ज़माना जेल है, जिसमें 10,000 फ़लस्तीनी, जिसमें सैकड़ों 10 साल से कम उम्र बच्चे हैं, वो भी शामिल है। और इनका एक कंसंट्रेशन कैंप है, वहाँ ले जाया गया। अब वहाँ उस टॉर्चर सेल में नो एक्सेस टू वाटर, नो एक्सेस टू डे लाइट, नो एक्सेस टू फ्रेश एयर, नो एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हाथ जो है वो बांधे गए नीचे, पीछे की तरफ वो हथकड़ियों में बेड़ियाँ डाल दी गई, जंजीरें डाल दी गई पाँव में, और पट्टियां आंखों के ऊपर डाल दी गई, और हमारे ऊपर कुत्ते जो हैं वो छोड़ दिए गए। हमारे पेशानियों के ऊपर गन की नालियां रखी गई। ऊंची आवाज़ पे हमें जो अब्सुर्द अपनी म्यूजिक जो है वो सुनाते थे, ताकि जहनी तौर पर हमें जो टॉर्चर किया जाए। तो एक टॉर्चर सेल था जहाँ कई तरीके से हमें आसाबी तौर पर तोड़ने की कोशिश की गई। एक तुर्क जो है वो अजान देता था, और उस अजान के ऊपर भी उन्होंने हमें जो है वो टॉर्चर किया। तो इन आखिरी वक्त तक, बल्कि ये कह सकूं कि जॉर्डन बॉर्डर तक डिपोर्ट करने तक उन्होंने अपना ये जो गैर इंसानी मुतशद्दिद रवैया था ये बरकरार रखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान फ़ोन पर राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने सियासत में इल्ज़ाम तराशी ख़त्म करने और मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया, सियासत में इल्ज़ाम तराशी ख़त्म करना होगी, मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सैलाब की ताज़ा सूरत हाल और ख़ारजा पॉलिसी पर भी बात हुई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, सदर आसिफ अली ज़रदारी से हमारे वफ़द की मुलाकात हुई, मामला रफ़ा दफ़ा हो गया।
PIDCL کو کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقم فراہم کر دی. اب سندھ حکومت انہیں روک رہی ہے. مجھ سے سوال کیا گیا لاہور کی طرح کراچی میں ترقیاتی منصوبے تیزی سے کب مکمل ہوں گے. میں نے کہا ہمیں ووٹ دے کر آزمائیں تو پنجاب سپیڈ یہاں بھی نظر آئے گی. مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ملک کے مسائل ہیں, انہیں حل کرنے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے. صدر صاحب کے ساتھ ہمارے جو وفد کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد معاملات رفع دفع ہو گئے ہیں. گرین لائن کی ایکسٹینشن کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے کام کر رہے ہیں, اس کو حکومت سندھ نے روک دیا ہے, لیکن ہم ان سے بات کریں گے. ہر صوبے کے اپنے جو وسائل ہیں ان کے لیے ہر صوبائی حکومت خود ذمہ دار ہے. ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہم بھی پنجاب کی رفتار سے ترقی دیکھنا چاہتے ہیں, تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ پھر آپ مسلم لیگ نون کو خدمت کا موقع دیں تو آپ کو مسلم لیگ نون کی سپیڈ نظر آ جائے گی. مانو میں CTD کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن مقابلے میں 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک کر دیے. CTD نے بتایا ہلاک دہشت گردوں کی شناخت راشدین عرف ملنگ یار اور خالد عثمان کے نام سے ہوئی ہے. ہلاک دہشت گرد ارشدین عرف ملنگ 4 CTD اہلکاروں کی شہادت کے حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا. دونوں دہشت گرد پولیس پر حملوں میں بھی مطلوب تھے. مفرور دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ چھوڑنے والے علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ گورنر ہاؤس بھیج دیا گیا ہے. مرکزی ترجمان PTI نے بتایا گورنر ہاؤس کے عملے نے استعفیٰ وصول کر کے دستخط بھی کیے ہیں. گورنر ہاؤس کے عملے نے گزشتہ رات 11:15 بجے استعفیٰ وصول کیا. اس سے پہلے علی امین گنڈاپور نے اپنا استعفیٰ سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا. آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ گورنر ہاؤس پہنچ گیا ہے. استعفیٰ دے دیا ہے, اب ڈرامے بازی بند کی جائے, ایسا کہنا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا. مزید انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے MPAs پہلے ساری اذیتیں برداشت کر چکے ہیں. یہ لوگ آزمائے ہوئے ہیں, ان کو مزید آزمانے کی ضرورت نہیں. ایک سوال کے جواب میں کہا دوبارہ وزارت اعلیٰ کی پیشکش ہوئی تو کام نہیں کروں گا. پارٹی میں بطور عام کارکن کی طرح کام کرتا رہوں گا. پارٹی پوزیشن نہیں لوں گا. ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے, اور ہمارے لیڈر جو عمران خان کا جو بھی فیصلہ ہے ہمیں 1-1 ہر طرح سے قبول ہے, اور ہماری تمام پارٹی جو ہے ہمیشہ کی طرح متحد ہے, اور تمام نے خان صاحب کے فیصلے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. یہ جو بیچ میں ابھی دوبارہ یہ تھوڑے سے پھر یہ کوئی چکر بنا رہے ہیں, یہ جو حکومت بنا رہی ہے کوئی چکر, اس پہ بھی ہم نے ساری لائمر بنا لیا اپنا. ان کی کوئی بھی ایسی سازش جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. پختونخوا جو ہے وہ عمران خان کا گڑھ ہے, جو عمران خان کا نامزد وزیر اعلیٰ ہے, اس کے لیے میں چیلنج کرتا ہوں کسی کے باپ پہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ سیاسی طور پر عمران خان کی جو امانت ہے, عمران خان کی حکومت ہم سے گرا سکے. میں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے اور عمران خان کے حکم پہ دیا ہے, یہ کوئی بھی ڈیلے کر لیں, میرا استعفیٰ ہو چکا ہے. اور میں ان کو ایک پیغام دوں گا تو آپ یہ ٹائم ضائع کر کے گریز کریں. 9 مئی کے بعد سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر طرح کی مشکلیں برداشت کی ہوئی ہیں, اور یہ ہے نا ٹیسٹڈ لوگ ہیں. یہ تو ٹیسٹڈ لوگوں کو جو ہے نا ٹیسٹ نہیں کیا جاتا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر مجھے ویسے اگر آفر اب دوبارہ آئے گی بھی صحیح تو میں کروں گا بھی نہیں. میں ایز اے ورکر کام کرنا چاہتا ہوں. پارٹی پوزیشن میں اس وقت بالکل نہیں لوں گا کوئی بھی. خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کا قائد ایوان کے لیے امیدوار لانے کا اعلان. لیگی رہنما اختیار ولی کہتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی JUI ANP اور دیگر مل کر امیدوار لائیں گے. JUI رہنما ضیاء الرحمان نے کہا وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے لیے پارٹی میں کوئی بحث نہیں ہوئی. مسلم لیگ نون, جمعیت علماء اسلام, پاکستان پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی اور ہمارے دوسرے جو اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز, وہ سب لوگ مل کر اپنا امیدوار لائیں گے. بالکل لائیں گے. پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کوئی پارٹی کوئی فلور کراسنگ ایکٹ تو ایکٹیو ہے نہیں. ماضی میں تو انہوں نے دوسری جماعتوں کے لگے بندے لوگوں کو جو ایک پارٹی کے کارکن تھے ان کے ٹکٹ پہ پاس ہوئے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ یہ ضمیر کی آواز پہ. تو آپ بھی ضمیر جگانے کے مشن پہ لگے ہوئے مطلب ہیں. دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کا ضمیر جاگتا ہے. تو امکان کتنا ہے؟ امیدوار اگر لانچ کریں گے تو مشترکہ لانچ کریں گے, اور اگر امیدوار لانچ کرنا ہے تو ہم ہارنے کے لیے کھڑا نہیں کریں گے, انشاءاللہ جیتنے کے لیے کھڑا کریں گے. اس حوالے سے ہمارے پارٹی کے سطح پر یا اپوزیشن کی سطح پر ایسی کوئی بات زیر غور ہی نہیں آئی. خیبر پختونخوا میں خزانے کے معاملات مزمل اسلم ہی دیکھیں گے. رہنما PTI سلمان اکرم راجہ نے بتایا بانی PTI نے کہا ہے مشیر خزانہ مزمل اسلم ہی رہیں گے. نئے وزیر اعلیٰ KP صوبائی وزراء اور کابینہ تشکیل دیں گے. کہ کابینہ نئے وزیر اعلیٰ مقرر کریں گے, تاہم مزمل صاحب جو ہیں بطور
वज़ीर फाइनेंस जो हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो कंटिन्यूटी रखेंगे, वो कायम रहेंगे। खान साहब की यही हिदायत है कि मुज़म्मिल असलम साहब ही जो हैं वो ख़जाने को देखेंगे। बिल्कुल तमाम जो वज़रा हैं वो नए वज़ीर आला अपनी सवाबदीद के मुताबिक मुकर्रर करेंगे। जहाँ तक पंजाब असम्बली की कमेटियों का ताल्लुक है, खान साहब ने हुक्म दिया है कि उनको भी छोड़ दिया जाए। यूट्यूबर आदिल राजा एक बार फिर झूठा साबित। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ इल्ज़ामात बेबुनियाद करार देती है। बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया। आदिल राजा के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और हद तक के इज्जत करार दिया। राशिद नसीर को 50,000 पाउंड अदालती अखराजात की मद में 3 लाख पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतालिक इल्ज़ामात भी मुस्तरद कर दिए। जज ने कहा कि इसका ताल्लुक ISI या फ़ौज से नहीं, सिर्फ 2 अफराद के दरमियान है। आदिल राजा के दावों के कोई शवाहिद नहीं मिले। आज़ादी इजहार राय की आड़ में किसी की साख मुतासर नहीं की जा सकती। अदालत ने हुक्म दिया, आदिल राजा अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फैसला जारी करेंगे। लंदन की अदालत ने इंतशार पसंदों के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया है। PTI के शरपसंद अनासर को दुनिया ने आज दिखाया ये कि जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जेल में बैठे बानी PTI दहशतगर्दों के चीफ स्पॉन्सर हैं। सुहेल आफरीदी की शनाख्त रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी है। PTI जो काम उसके ज़रिए कराना चाहती है, रियासत उसकी इजाज़त नहीं देगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं तहरीक लब्बैक का काम शोले उगलना है। गज़ा पर एहतजाज की आड़ में कुछ लोग फसाद चाहते हैं। पंजाब और इस्लामाबाद से बाज़ शरपसंद गिरफ्तार किए गए, उनसे डंडे, केमिकल, शीशे और हमला आवर अशिया मिली हैं। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से फेस मास्क और आंसू गैस के शेल भी मिले हैं। एहतजाज करना चाह रही थी या फसाद करना चाह रही थी, TLP ने कहाँ इजाजत मांगी है? फलस्तीन को अमन मिलने पे आपको क्या मसला है? पंजाब ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और इसी तरह इस्लामाबाद में गिरफ्तारी हुई। पुलिस पर हमला करने के लिए शीशे के गोलियां, नमक, केमिकल, डंडे बरामद हुई हैं। ये पुरअमन एहतजाज है। मजहब के नाम पर होने वाली किसी भी मनफी सियासत की पाकिस्तान में इजाजत नहीं है। पंजाब में 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहे की नुमाइश, अवामी इज्तिमात और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद होगी। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस आज बंद रहेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट सर्विस मअतल कर दी गई। जुड़वा शहरों के मरकजी रास्ते सील करके पुलिस तैनात कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान भी जारी कर दिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे बाबर मलिक से। जी बाबर। जी हाँ, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद है। मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की गई है। शहर में 144 नाफिज की गई है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुल्लिका रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील किया गया। फैजाबाद को चारों तरफ से सील किया गया। 12 काऊ से आने वाली ट्रैफिक बंद है। 26 नंबर चुंगी पर कंटेनर रख के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आने वाले रास्ते बंद किए गए हैं। इसके साथ साथ टी चौक रवात के मकाम पर रावलपिंडी में तो ट्रैफिक आ सकती है स्टेट, लेकिन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब नहीं जा सकती। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर कैदी वैन्स खड़ी की गई हैं। भारी नफरी तैनात की है। RPO रावलपिंडी सरफराज एल्पा की जानिब से रावलपिंडी, जेलम, अटक, चकवाल, मरी और तलगंग के DPOs और CPOs को हदायत जारी की गई है कि वो सिक्योरिटी के इंतजाम करें और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त ना दी जाए। जी। औस्ता मोहम्मद की तहसील बागटेल के BHU के बाहर खातून ने बच्ची को जन्म दिया। एक शख्स अपनी ज़ौजा को बेसिक हेल्थ यूनिट में जचगी के लिए लेकर आया। लेडी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद ना होने की वजह से खातून ने अस्पताल के बाहर बच्ची को जन्म दिया। महकमा सेहत के हुकाम ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कसूर के इलाके इलाहाबाद में म्यूनसिपल कमेटी की नाहली कंगनपुर रोड पर शहरी गंदे पानी से जनाजा ले जाने पर मजबूर। वीडियो एयरवाई न्यूज़ को मौसूल हो गई। शहर भर के गली महलों और बाज़ारों में सेवरेज की लाइनें बंद, गटर उबल पड़े, शहरी रुल गए। म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद के चीफ ऑफिसर सेवरेज मसाइल हल करने के बजाय टिकटॉक वीडियोज़ बनाकर वक्त गुजारी करने लगे। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेने की अपील कर दी।
नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर ने मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया आला सतह के तबादलों बशमूल न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में बातचीत के ज़रिए पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मशरिक़ वस्ता और वसी तर ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की कोशिश में पाकिस्तान की मुसलसल शमूलियत का जिक्र किया। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने अमरीकी कंपनियों की पाकिस्तान के तवानाई, अहम मादनियात और IT के शोबों में सरमायाकारी में भरपूर दिलचस्पी से आगाह किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर अजला में दिन के औकात में मौसम खुश्क और रात में सर्द रहने का इम्कान है। दीर, चित्राल, कश्मीर, GB में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। लाहौर में मौसम तब्दीली की जानिब गामजन है। रात के वक्त खुनकी में इजाफा हो रहा है। दिन में भी दर्जा हरारत में कमी वाक़ हो रही है। मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद। लाहौर शहर में मौसम तब्दीली की तरफ रवां दवा है। सुबह के वक्त भी हल्की हवा चल रही है, जबकि रात के वक्त खुनकी में इजाफा होता चला जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कम से कम टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और मौसम जो है वो इस माह के आखिर तक वाज़े तौर पर तब्दील हो जाएगा। जो स्मॉग की सूरत हाल है वो कुछ जो आलूदगी है उसमें आहिस्ता आहिस्ता से इजाफा हो रहा है जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है। आज भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। तो जो महकमा माहौलियात और हुकूमत की टीमें हैं वो भी थोड़ी बहुत मुतहरिक दिखाई दे रही हैं। जी, कराची के मौसम में तब्दीली के आसार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम दिन में गर्म और खुश्क रहेगा। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का जो मौसम है आज भी गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि शाम के औकात में समंदरी हवाओं का सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात का बताना है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है, महकमा मौसमियात का बताना है कि हवा में नमी का तनासुब 46% और कराची शहर में इस वक्त हवा 5 से 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सखर सैयद कुमैल हैदर शाह ने होजमालो ट्रेन की स्टेशन और पार्क का दौरा किया। उनका कहना था इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रेन सर्विस रवां साल ही शुरू हो जाएगी। ट्रेन सर्विस को सरजी रेलवे स्टेशन से पन्नो आकिल स्टेशन तक चलाई जाएगी। सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले बच्चे और नौकरी पेशा लोगों मुलाजमीन के लिए सहूलत होगी। हफ्ता और इतवार को ट्रेन में खाने पीने वाली बोगियां शामिल की जाएंगी। लाड़काना पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जुनैद अहमद जैसर की किताब की तकरीब रौनुमाई हुई, जिसकी सदारत सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर ने की। क्रिमिनोलॉजी के मौजू पर लिखी गई किताब को हाज़रीन ने खूब सराहा। तकरीब का हवाल जानते हैं बाबू इकबाल की इस रिपोर्ट में। पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जुनैद अहमद जैसर के हाथों से तहरीर करदा क्रिमिनोलॉजी के नाम से छपी इस किताब की रौनुमाई सिंध हाई कोर्ट लाड़काना के जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर ने अपने हाथों से की। Professionals whose expertise enriched its content and the family members whose encouragement sustained the author throughout this journey. मुसन्निफ के मुताबिक ये किताब मुकाबले के इम्तहानात की तैयारी में तालिब इल्मों की रहनुमा साबित होगी। We are here to launch criminology book and celebrate a little contribution towards a subject of criminology. किताब की रोनुमाई हो रही है। जो पुलिस में तालीम और तदरीस का इतना रुझान पाया नहीं जाता, तो ये इट्स अ वेरी गुड चेंज। और जैसे कि आईजी साहब ने कहा, द रेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स हैव टू फॉलो। जाथा में ॾिसंदा रहंदा ऐं इहो तक़रीबन हफ़्तो ॾेढ मुंहिंजे हथ में हूंदो, मां हुनखे पीसेस में पढ़ियो। इनफैक्ट दिस इज़ अ वेरी गुड एडिशन। तकरीब रूनुमाई में जस्टिस अली हैदर अदा, जस्टिस निसार अहमद भमरो और वकला रहनुमा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं। कैमरामैन वसीम भुट्टो के हमरा एस इकबाल बाबू, ARY न्यूज़ लाड़काना।
फिलिपाइन का जनूबी सूबा दावाओ अल सुबह जल्जले के शदीद झटकों से लरज़ उठा। लोग खौफ व हरास के बाइस घरों से बाहर निकल आए। अमरीकी ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड की गई, जिसका मरकज़ मनाए की साहिली पट्टी और गहराई 10 किलोमीटर थी। इंतज़ामिया ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले से कई इमारतों को नुकसान पहुँचा है। सुनामी के खदशे के बायस आबादी को बुलंद मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। और अब टेक न्यूज़। गूगल ने अपनी ईमेल सर्विस में सार्फिन की सहूलत के लिए जदीद AI फीचर मुतारफ़ करा दिया। अब तवील ईमेल थ्रेड्स की समरी खुदकार तौर पर तैयार होगी और एक ही क्लिक पर आसानी से नज़र भी आएगी। गूगल ने पाकिस्तानी तलबा के लिए ऐलान कर दिया, 18 साल या ज़ायद उम्र के तलबा को मुफ्त गूगल AI प्रो प्लान दिया जाएगा। गूगल की जानिब से 1 साला सब्सक्रिप्शन बिला मुआवजा फराहम की जाएगी। गूगल के मुताबिक पेशकश का मकसद तालीम, तहकीक और तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। तलबा को जदीद AI टूल्स और फीचर्स तक रसाई हासिल होगी। तलबा ईमेल्स का खुलासा, प्रेजेंटेशंस और डेटा तज्जिया ज़्यादा मौसर तरीके से कर सकेंगे। नोटबुक LM से ज़ाती नौयत की तहकीक और तहरीर में मदद मिलेगी। वीडियो और तस्वीर से तख्लीकी मवाद तैयार करने के जदीद टूल्स तक रसाई होगी। तलबा को 2 TB क्लाउड स्टोरेज मुफ्त फराहम की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें RY न्यूज़।